A very good evening to all of you. Uh, Firstly, just a quick revision. In last class, we were talk about uh, the last class transmission media. Transmission media basically it is communication channel or medium that help to exchange the information or data from one node to another. One node Uh, those nodes sends to data. This is also known as sender, and receive the data, also known as receiver. Data is transmitted through the electromagnetic signals. Transmission media basically categorized in two types. First is guided media, second is unguided media. Already studied in last class. Just revision, quick revision. Guided media further categorized in three types. First is uh, first category is two-state pair. Second, coaxial cables, coaxial media. Third is fiber optics media or cables. Unguided media further categorized in three types: radio waves transmission media, microwaves transmission media, and third one is the infrared transmission media. Guided media is also known as wired media, wired or cable media. Unguided media is also known as wireless media. And this is the guided media. Guided media or the wide media or wide medium communication channels. First criteria is two-state pair cables. This one is already studied. Two-state pair is a physical media made of pair of the cables twisted with each other. Twisted pair cable is cheap. Uh, Characteristics of this cables first is cheap, not expensive as compared to the other transmission media. That is the coaxial or fiber optic cables. Installation of the twisted pair cable is easy, and cables of this media is lightweight. Frequency range for this cable is 0 to 3.5 kilohertz. Basically, it consists two insulated copper wires arranged in a regular spiral pattern, basically twist, and covered by the another insulation the, that is also known as the jackets. Twisted pair cables categorized in two types. First is unshielded twisted pair cables, and second category is the shielded twisted pair cables. Unshielded twisted pair cables is widely used in the telecommunications, and many categories available in market. Category 1, category 2, category 3, category 4, category 5. मार्केट में कई सारी इसकी कैटेगरी की केबल मिलती हैं. इसका जो अनदर नेम है इसे शॉर्ट्स में बोला जाता है वो कैट करके बोला जाता है. कैटेगरी 1 को कैट 1 बोल देते हैं, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5. अगर हमें मार्केट से केबल लेने जाना है, वी आर परचेसिंग द केबल्स, तो then pronounce the name cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, cat 5.
इन सभी केबल्स की भी अलग-अलग स्पेसिफिकेशन है, जो हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, सारी चीज़ें जानी थी। कैट 1 लो स्पीड के लिए यूज़ करी जाती है, कैट 2 की अलग एक लगभग 4 एमबीपीएस तक स्पीड को सपोर्ट करता है। कैट 3 16 एमबीपीएस के लिए यूज़ करी जाती है, मैक्स टू मैक्स 16 एमबीपीएस, एंड कैट 4 इज़ it can support up to 20 Mbps. This cable is used for long distance communication. Cat 5 it can support up 200 Mbps. अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वो सस्ती होती है, अभी हमने पहले ही बात कर ली इसकी। इंस्टॉलेशन बहुत आसानी से हो जाता है और लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी इसे यूज करते हैं। हाँ, ऐसा है, इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये अनसील्डेड होती है, सील्ड नहीं होती है इसके ऊपर, तो कई बार नॉइस एटेन्यूएशन या डिस्टॉर्शन की वजह से वो सिग्नल ब्रेक होता है, तो इस वजह से इसे शॉर्टर डिस्टेंस में यूज करते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था। सील्डेड जो उसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज होंगे, एटेन्यूएशन, नॉइस या डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर देती है। ये नहीं बोल सकते हम कि पूरी तरह से ये फ्री होती है, मतलब नॉइस फ्री होगी, लेकिन बहुत हद तक ये उसका सॉल्यूशन है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ी सी महंगी है ये उससे, और कई बार अगर उसमें सील्ड उसकी लीक हो जाए या कट जाए तो उस जगह इंस्टॉलेशन या री इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। दूसरी जो केबल थी या दूसरा जो वो हमने देखा था कोएक्सियल केबल, वही केबल जो कि हमारी टीवी के लिए यूज होती है, टीवी वायर में यूज की जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं जिसके लिए यूज करी जाती है। उसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इस तरीके का होता है, एक सेंटर में एक वायर लगा होता है जिसे सेंटर कंडक्टर बोला जाता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, इंसुलेटर, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, वो भी एक वायर होता है, और उसके ऊपर एक जैकेट मतलब ऊपर का कवर। तो जो इंटरनल वायर है जिसे हम सेंट्रल कंडक्टर बोल रहे हैं, उसे इनर कंडक्टर भी बोला जाता है। जो शील्ड वाला पोर्शन है या जो कंडक्टर लगा हुआ है उसे आउटर कंडक्टर भी बोलते हैं। जो कॉपर मैश होता है, बेसिकली कॉपर की एक जाली लगी होती है, इसके अंदर से जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहा होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, और ये सारा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर से जो सिग्नल जा रहा होता है वो ब्रॉडबैंड सिग्नल होता है। कल की क्लास में हमने पढ़े थे बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। अगर एक सिंगल सिग्नल की बात करें, जैसे टेलीफोन पे क्या हो रहा होता है कि बात हो रही होती है, मतलब उसमें जो सिग्नल ज्यादा होता है वो साउंड सिग्नल होता है या वॉइस सिग्नल होता है, तो वो एक सिग्नल हो गया। लेकिन जो टीवी की बात कर रहे होते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग की, उसमें क्या होता है कि उसमें वीडियो भी दिखाई दे रहा होता है, उसके साथ में ऑडियो भी होता है। वीडियो भी क्या होता है, नंबर ऑफ द इमेजेस, कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द इमेजेस, तो उसमें भी कई सारे सिग्नल्स हो सकते हैं, और ऑडियो के लिए भी सिग्नल होता है। सबको मिला के एक वायर के थ्रू वो भेजा जाता है, तो वो टेक्निक कौन सी होती है, ब्रॉडबैंड वाली। बैंड मतलब सिग्नल्स, ब्रॉड मतलब कई सारे सिग्नल, तो कई सारे सिग्नल्स जा रहे होंगे तो सिग्नल्स की एक रेंज होती है, एक यूनिट होती है जो हर्ट्ज में होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो जब बाहर भी बहुत सारे सिग्नल्स होंगे आउटसाइड द केबल, वहां पे भी कुछ सिग्नल्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाएगी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसकी वजह से यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि अंदर वाला सिग्नल भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इस केबल में वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें कई सारी लेयर होती हैं, तो वो उसी लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से ये
नॉइज़ फ्री है, लेकिन अच्छी एक्यूरेसी होती है इसकी, इसलिए अभी तक इसे यूज़ कर रहे हैं। उस केबल का नाम है कोएक्सियल केबल। उसके टाइप्स भी हमने देखे थे, 2 बेस बैंड ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन मतलब सिंगल सिग्नल को भेजना, ट्रांसमिट करना, ब्रॉडबैंड मतलब मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्या हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन करें टू स्टेट पेयर केबल से तो उससे बहुत बेटर होती है और बैंडविड्थ भी इसकी बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेज, अब इतना ये सारे अ, उसके कंपैरिजन में थोड़ी महंगी भी होगी और कई बार थोड़ा फॉल्ट कहीं आता है, कट जाती है, तो उसे उसकी वजह से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है और फिर उसे रिकंटिन्यू करना, रिकॉन्फ़िगर करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तीसरी जो कैटेगरी देखी थी वो देखी थी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जिसमें जो सिग्नल होता है लाइट सिग्नल्स होता है, बाद में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और जो केबल्स का फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके का था जो देखा था। इसमें कई सारी लेयर होती हैं। इंटरनल लेयर इज आल्सो नोन एज कोर एंड कोर बेसिकली narrow strand of glass or plastic known as the core. A core is light transmission area of the fiber. यहाँ पे जो सिग्नल्स जो ज्यादा होता है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स नहीं होता, फाइबर और लाइट सिग्नल्स होता है। लाइट सिग्नल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ाई जाए या स्पीड को बढ़ाया जाए। स्पीड को बढ़ाने के लिए फिर सोचा गया कि लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा होती है, तो एक फिजिक्स का एरिया होता है फोटोनिक्स करके होता है, उसमें फोटॉन्स को मूव कराया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सॉरी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बिजली बनती है, ऐसे फोटॉन्स के मूवमेंट वाली जो टेक्निक होती है फोटोनिक्स होती है, उस टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पे उन्होंने सिग्नल्स का मूवमेंट कराया। बाद में वो चेंज हुआ है, वो एक अलग कहानी है। तो जो लाइट के जो ट्रांसमिशन या लाइट सिग्नल का जो ट्रांसमिशन हो रहा होता है, इसमें कोर वाले एरिया से हो रहा होता है। उसके ऊपर एक दूसरी एक लेयर होगी, उस लेयर का नाम होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग भी एक ग्लास की लेयर बनी होती है और इसका काम क्या होता है कि प्रोवाइड द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर इंटरफेस एज टू cause the reflection within the core so that the light waves can be transmitted through the fiber. फिर उसके बाद एक और लेयर होती है जिसका नाम जैकेट होता है और जैकेट उसके ऊपर से प्रोटेक्ट कर रही होती है कि उसकी स्ट्रेंथ को अच्छा करने में या बाहर का सिग्नल्स कोई इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, बाहर की लाइट एब्जॉर्ब ना हो जाए या सनलाइट को इसमें एब्जॉर्ब ना करे, उससे रोकने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जैकेट लगाया जाता है। तो 3 तरह की केबल थी, पहले टू स्टेट पेयर, उसकी 2 कैटेगरी थी, अनशील्डेड, शील्डेड, सेकंड कोएक्सियल केबल्स, थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। यही पूरे तीनों केबल्स गाइडेड मीडिया में आती हैं, मतलब वायर्ड। दुनिया में जितनी भी केबल्स बनी होंगी, जितने भी वायर बने होंगे, वो इन्हीं 3 कैटेगरी में आते होंगे, इनसे बाहर कोई भी नहीं होता होगा। किसी भी वायर को देख लेना जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करे गए हों। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल की वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। दूसरा जो था अनगाइडेड ट्रांसमिशन, जो आज की क्लास का टॉपिक है वो अनगाइडेड ट्रांसमिशन ही है। और अनगाइडेड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बेसिकली ये वायरलेस ट्रांसमिशन है, किसी भी मीडिया या किसी भी केबल्स की जरूरत नहीं होती। अब केबल्स की जरूरत नहीं है तो किस तरीके से ट्रांसमिट होगा? तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वायर के थ्रू वो मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, वो वायरलेसली होता है। तो वायरलेसली कैसे होगा? वो वेव्स के फॉर्मेट में होगा, वेव्स के थ्रू होगा। इसमें कोई भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो वो कौन-कौन से इसके कैटेगरीज़ होती हैं, 3 होती हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन।
तो पहली जो कैटेगरी है उसकी रेडियो वेव ट्रांसमिशन। 1 सेकंड। की पहली कैटेगरी है वो है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। Basically radio waves are the electromagnetic waves that are transmitted all the direction of the free space. Radio waves are omnidirectional. That means the signal are propagated in all the directions. Range of these waves 3 kilohertz to 10 kilohertz. This range is the previous या पहले का जो डेटा है, अब कुछ रेंज इसकी इंक्रीज कर दी गई है। In the case of the radio waves, the sending and receiving antenna are not aligned. The wave sent by the sending antenna can be received by the any receiving antenna. इसकी पहले एप्लीकेशंस की बात करें तब इसे थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो एक वाईफाई की बात करें, एक एफएम रेडियो एफएम जो चलता है, या इसके अलावा भी कई सारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं जो कि इसी रेडियो वेव से चल रहे होते हैं। तो उसमें जो ट्रांसमिशन होता है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, या ड्रोन का भी देखें आप, ड्रोन फ्लाइंग के लिए तो उसका जो आरसी होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उससे वो फ्लाई हो रहा होता है, सिग्नल्स भेज रहा होता है, वो सिग्नल भी रेडियो वेव ट्रांसमिशन वाला, और उसका जो कम्युनिकेशन का मेथड है वही होता है उसमें। उसकी भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, लगभग वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कर रहा होता है। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड है, इतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो एक्यूरेट हो, वो ऐसा नहीं हो कि उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो। मतलब वो इंफॉर्मेशन या डेटा जो वहां से सेंड कर रहे हैं वो पहुंचना चाहिए हर हालत में। तो उसकी एप्लीकेशंस की और बात करें, कौन कौन से उसके होते हैं। रेडियो वेव्स इज यूजफुल फॉर द मल्टीकास्टिंग when there is the one sender and many receiver। ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं उसे कि एक ट्रांसमिट कर रहा होता है, बाकी का सब देख रहे होते हैं। जैसे टीवी भी चलती थी पहले, 2 चैनल आते थे तो वो एंटीना लगाना होता था छत पे। तो वो छत वाला जो एंटीना होता था उसके बाद उस शहर में एक कोई बड़ा एक एंटीना होता होगा, वहां से वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करी जाती थी। मतलब कुछ डेटा एक्सचेंज किया जाता था या ब्रॉडकास्ट किया जाता था। सारे सिग्नल, सारे एंटीना उसे कैच करते थे, उससे उनके यहाँ वो टीवी चल पाता था। तो इस तरीके वो जो था वो भी एक एप्लीकेशन है इसकी। और ये एफएम का तो मैंने बता ही दिया आपको। और कॉर्डलेस फोन्स आते हैं वो भी उसी के होते हैं, और भी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे। कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन उस तरीके से हो रहा है वो रेडियो वेव से ही होता है ज्यादातर, ब्लूटूथ को छोड़ के। ब्लूटूथ इंफ्रारेड पे काम कर रहा होता है और टीवी का रिमोट भी इंफ्रारेड पे काम कर रहा होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए से, और या मोबाइल सेलुलर फोन्स के लिए ज्यादातर यूज हो रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क में मतलब इंटरनेट चलाने के लिए वायरलेस इंटरनेट की बात करें, या अभी एयर फाइबर या जियो के जो लगे हुए हैं, जियो एयर फाइबर, एयरटेल जियो एयर फाइबर, वो सारे इसी पे ही काम कर रहे होते हैं। और रेडियो वेव्स कवर अ लार्ज एरिया, दे कैन पेनिट्रेट द वॉल्स। वो तो बहुत बड़ा एरिया एक ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, और वो ये चलना शुरू हो जाती हैं। उसकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है बहुत हाई होती है, तो वो
अपना ये फ़ोन सेलुलर फ़ोन भी होता है, कॉल कर रहे होते हैं, तो कॉल भी उसी तरह से होता है। तो जैसे हम कॉल कर रहे होते हैं तो कुछ ही सेकंड, मिलीसेकंड या माइक्रोसेकंड लगती है उसे कनेक्ट होने में। तो वो पूरा जो प्रोसेस है या पूरा सिस्टम है, वो इसी पे चल रहा होता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन का। तो सिंपल एग्ज़ाम्पल्स हमारी जो टीवी चलती है या हमारे जो सेलुलर जो फ़ोन से बात हो रही होती है, तो वो सब रेडियो वेव ट्रांसमिशन पे काम कर रहे होते हैं। तो ये था रेडियो वेव, मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द अनगाइडेड मीडिया, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एंड सेकंड कैटेगरी इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। Microwave transmission, basically this technology that transmit the focus beam of the radio signals from one ground-based microwave antenna to another. यहाँ पे भी एक माइक्रोवेव भी उसी तरह की होती है। Recording in progress. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जिसकी रेंज भी अलग होती है। वो किलो हर्ट्स में या मेगा हर्ट्स में थी, तो ये गीगा हर्ट्स में होती है। या ऐसे बोल सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हो रहा होता है या किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा भेज रहे होते हैं, तो वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ज्यादातर यूज किया जाता है। एक्यूरेसी के लिए भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज किया जाता है। तो इसके अगर कैटेगरीज की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो दो होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, दूसरा सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोवेव, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा बैंडविड्थ, उसकी क्या स्पीड होगी। शॉर्ट डिस्टेंस में इसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में लगाएंगे तब भी उतना ही खर्चा आएगा। तो वो और नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि क्या क्या होते हैं उसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो। और लॉन्ग डिस्टेंस एट्यूनेशन, सबसे जो मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एट्यूनेशन है। एट्यूनेशन का बेसिकली जो मतलब होता है, अभी तक कई बार मैंने एट्यूनेशन बोला, कई बार मैंने नॉइस बोला, डिस्टॉर्शन बोला, इंटरफेरेंस बोला, तो उनके क्या मतलब होते हैं वो अभी एक एक करके बताएंगे। एट्यूनेशन का सिंपल मीनिंग होता है लॉस ऑफ द सिग्नल्स। तो सिग्नल्स कहीं से ट्रांसमिट करे गए, एक वेदर की वजह से, मौसम की वजह से, या और भी कोई चीज हो सकती है, बीच में बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई, उसकी वजह से वो सिग्नल्स वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज एट्यूनेशन, मतलब सिग्नल लॉस हो गया। तो उस केस में क्या होता था कि उस बिल्डिंग से ऊपर बड़ा एंटीना बनाना है, एंटीना साइज क्या है, ये सारी चीजें, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हुई रेडियो वेव्स के लिए। लेकिन माइक्रोवेव में ये बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है और उसकी बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा होती है, तो हर जगह वो पहुंच पाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रेडियो वेव से तो महंगा होता है, लेकिन केबल्स जो लगाते हैं उससे सस्ता होता है। तो कई चीजें आप देखते जा रहे होंगे, हर चीज को वायरलेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो वायरलेस बनाने का मतलब यह है कि जो कॉस्ट केबल्स बिछाने में या गाइडेड मीडिया लगाने में जो हो रही है, वो कॉस्ट कम हो रही है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जो कि कई सारी मूवीज या कई सारे अलग अलग रिसर्च में दिखाए गए हैं। लेकिन सस्ता तो है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आगे भी बढ़ रही है उससे। उसका जो इंस्टॉलेशन है, केबल्स का जो इंस्टॉलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं या तो केबल्स को ऊपर बांध के ले जाया जाएगा या जमीन के अंदर से ले जाया जाएगा। तो उसके जो भी अ, कई सारी परमिशंस, कई सारे नुकसान, बहुत सारे वो होते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल वो लगाओ एंटीना, बस वो सब जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वायरलेस है। कहीं पे भी ओवर द
ओशियंस कैन बी अचीव बाय यूजिंग द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, चाहे पानी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, हर जगह ये हो जाएगा। उसका ट्रांसमिशन का इंस्टॉलेशन करें या कम्युनिकेशन के लिए ये लगाएं, वो भी इतनी आसान मतलब मुश्किल नहीं होती है, बड़ी आसानी से हो जाता है। एक डिवाइस लगाया जाता है, डिवाइस उसे ट्रांसमिट करेगा, तो हो जाता है। लास्ट वन इज द इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशंस. Basically, infrared is wireless technology used for the communication over the short range. सबसे पहले मैं इसके एप्लीकेशन से एग्जांपल बता देता हूँ। दो एग्जांपल इसका, एक ब्लूटूथ डिवाइस, सेकंड इज द टीवी रिमोट। तो वो शॉर्ट रेंज में यूज करे जाते हैं। इसकी जो रेंज होती है, यहाँ पे देखो माइक्रोवेव की जो रेंज है, फ्रिक्वेंसी रेंज, वो लगभग 4 या 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 21, 22, 23 गीगाहर्ट्ज तक होती है। लेकिन इंफ्रारेड की कितनी है? 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज, मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि इसे हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज क्यों कर रहे हैं? ये तो इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ऐसे तो लॉन्ग रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें उसका जवाब ये होता है कि लॉन्ग रेंज के लिए इसे यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका जो यूज होता है वो इंडोर में ही होता है। आउटडोर में करेंगे तो आउटडोर में क्या होगा, वहां पर सनलाइट होगी, और सनलाइट में भी इंफ्रारेड बेस होती हैं, तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेगी, उसकी वजह से वो सिग्नल्स ब्रेक होगा। इसलिए इसे शॉर्ट रेंज और इंडोर के लिए यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसकी हाई बैंडविड्थ तो होती है, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो डेटा रेट भी अच्छी होगी, कोई दीवार से पेनिट्रेट नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में रेडियो वेव्स की तरह बीच में वो आ गया तो नहीं पहुंचेगा आगे, और पेनिट्रेट मतलब उसके बाहर भी नहीं जाएगा। और रेडियो वेव्स में क्या होता है, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड मोर सिक्योर होता है, एक तो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, तो वो उससे ज्यादा मोर सिक्योर होता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बार बार मैं बोल रहा था इसमें, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द एटोनेशन, सेकंड इज डिस्टॉर्शन, थर्ड इज द नॉइस। Attenuation means the loss of the energy, that is the strength of the signal decrease with increasing the distance, which causes the loss of the energy. वही कॉन्सेप्ट है, जैसे एक इंसान थोड़ी दूर वॉक करने जाएगा तो आसानी से जा पाएगा, उससे दूर जाएगा तो उससे और ज्यादा थकान होगी, उससे दूर जाएगा तो और ज्यादा थकान होगी। ऐसे सेम सिग्नल के लिए भी होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस पे अलग चीज होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे और उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है। तो जो लॉस हो रही होती है उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एटेन्यूएशन। डिस्टॉर्शन क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल्स, this type of the distortion explained from the different signals have different frequency. Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at a different time, which leads to delay distortion. के अगर उसका थोड़ा सा भी चेंज किया अगर सिग्नल में, तो वो पूरा उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो डिले हो जाता है। तो चेंजेस जरूरी नहीं है कि खुद ही करें, वो दूसरे एंड पे भी या किस तरीके से हो सकते हैं। तीसरा जो होता है नॉइस, नॉइस का ये मतलब होता है कि हमारा जो सिग्नल है किसी भी गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू जा रहा है, उसी जैसा एक दूसरा सिग्नल आ गया जिसे अनवांटेड सिग्नल्स बोल सकते हैं, अब वो उसमें ऐड हो गया, उसकी वजह से जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो अलग दिखेगा। कई बार टीवी में भी देखा होगा कि कुछ
उल्टा सीधा दिखने शुरू, उल्टा सीधा मतलब इमेज जो होती है, वीडियो होती है, तो वो कहीं आधी दिख गई, आधी नहीं दिखी, कभी आवाज आ गई, नहीं आई, तो वो नॉइस की वजह से होती है, दूसरा सिग्नल उसमें आके मिल जाता है। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो कई बार वायरलेस में ज्यादा आती है, वायर्ड में कम आती है। उसमें भी आती है लेकिन कंपैरिजन विद बोथ तो वायरलेस में ज्यादा होती है। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी जो है वो बेसिक कन्वर्जन कि कई बार हम बोलते हैं, कभी मोबाइल में भी देखते हैं, केबी क्या होता है, किलोबाइट्स क्या होता है, इतनी स्पीड आ रही है, इतना डेटा है। रिचार्ज भी करवाने जाते हैं तो वो बोलता है कि कौन सा वाला करवाना है। आप बोलते हो कि मैं 1.5 जीबी पर डे वाला कर दूं, तो 1.5 जीबी क्या होता है या 2 जीबी? ये तो पता है डेटा है, वो ज्यादा चलेगा, ज्यादा समय तक ज्यादा यूज करना है, ज्यादा यूज करना है तो 2 का 3 का 4 का करवाएंगे, इससे भी ज्यादा करना है तो ब्रॉडबैंड लगवा लेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो टर्मिनोलॉजी है, उनके कन्वर्जन भी है। अगर कुछ लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे, ऐसा तो ये मिल जाएंगे। तो वो जो गीगा बोलते हैं, पहले तो प्रीफिक्स ये सारी चीजें देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। गीगा जो बोलते हैं, गीगा मतलब उसका एब्रिविएशन जी होता है, उसका मीनिंग होता है 10 की पावर 9, 10 इज टू द पावर 9। मेगा 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3, डेसी 10 पावर -1 मतलब 1/10, सेंटी 1/100, मिली 1/1000, माइक्रो 1/10 पावर 6, नैनो 1/10 पावर 9, पिको 10 पावर -12 या 1/10 पावर 12, और फेमटो 10 पावर -15। उसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो कई बार एम बी लिखा होता है, एम कैपिटल वी, कई बार एम कैपिटल स्मॉल वी। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी का भी डिफरेंस होता है, मतलब कैपिटल बी इज वाइट और स्मॉल बी इज बिट्स। तो 1 कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल 8 वी या 1 वाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो केबी यहाँ पे लिखा है, केबी एमबी जीबी, तो यहाँ पे बड़ी बी लिखा हुआ है, बड़ी बी का मतलब केबी मतलब किलो, के मीन्स किलो, बी फॉर वाइट। तो 1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। बिट्स में बदलेंगे तो इंटू 8 कर देंगे। 1 एमबी मतलब 1024 केबी, या वाइट में बदलेंगे तो 1024 इंटू 1024 वाइट। 1 जीबी इक्वल्स टू 1024 MB। तो जैसे हमें कितना मिलता है डेटा, 1 पॉइंट, जैसे एक दिन में 2 जीबी वाला प्लान लिया है तो 2 जीबी का मतलब हो गया कि 2 इंटू 1024 MB। MB को भी कन्वर्ट कर सकते हैं केबी में, केबी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइट्स में। तो उसे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलो कि दिन भर में आपने कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट्सएप चला रहे हो तो उसमें इमेज डाउनलोड करते हो, तो इमेज डाउनलोड करोगे तो इंटरनेट जल्दी चला जाता है। तो वो या वीडियो देखते हो तो उससे भी जल्दी चला जाता है, या वीडियो डाउनलोड करोगे तो और जल्दी जाएगा, क्योंकि उसका जो साइज होता है उतना ही उसमें डेटा खर्च हो रहा होता है। तो वो भी इसी तरह से कैलकुलेट होता हुआ, उसमें भी ऑटोमेटिक कैलकुलेटर टाइप का लगा है, वो होते हुए पता चला कि रात के 12 बजे पूरा खत्म होना है आपका दिन में ही हो गया, क्योंकि आपने उस तरीके से डेटा यूज किया। तो ये पूरा यूनिट है, अलग अलग यूनिट दी हुई है, ये बेसिक यूनिट है, मुझे लगता है सभी
लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें भी करते आ रहे हो, सबको पता भी है कि मोबाइल फ़ोन में या उसका डेटा क्या होगा, कितना जीबी होगा, कितना और फ़ाइल का साइज़ क्या है, कई बार मेल नहीं जा रहा होता है, 25 एमबी से ज़्यादा ये फ़ाइल होती है, मेल नहीं जाता, फिर ड्राइव से भेजना होता है, तो उनका मतलब क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो उसके कन्वर्जन में ये बहुत ज़रूरी है और चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 अ, टर्मिनोलॉजी और है। पहले बिट रेट, बिट रेट का मतलब ये है, अभी बिट हमने देखा बिट्स मतलब 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो बिट रेट मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो ट्रांसमिशन हो रही है, उसी के हिसाब से हमारी स्पीड पता चलती है कि हमारे इंटरनेट की कितनी स्पीड आ रही है। कई बार मोबाइल फ़ोन में ऊपर भी दिखाई देता है कि 2 केबीपीएस, 2 एमबीपीएस, तो उसमें स्मॉल वी होता है, उसमें हमेशा देखना। तो 2 केबीपीएस का मतलब हो गया 2 मतलब 2 इंटू किलो मतलब 10 की पावर 3 बिट्स 1 सेकंड में डेटा जा रहा है। तो कोई भी इमेज अगर 10 या 15-20 एमबी की है और हमारी स्पीड आ रही है जैसे 10 एमबी की है और हमारी स्पीड आ रही है 2 एमबीपीएस की, तो कितना समय लगेगा उसमें? लगभग 5 सेकंड लगेगा। तो इस तरीके से पूरा वो कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बिट रेट के साथ। तो बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड और सेकंड इज baud rate. Baud rate number of the signals unit per second. Number of the signal unit per second. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशंस। अभी जो हमने देखा अनगाइडेड की तीनों कैटेगरीज देख ली, उसके बाद हमने देखा बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देख ली, उसके बाद यूनिट्स की भी बात हो गई, फिर बिट रेट baud rate की भी बात हो गई। बिट रेट नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकंड होता है, baud rate नंबर ऑफ द सिग्नल्स पर सेकंड। अब आता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन थोड़ा पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी हमने वो बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। अब जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा वाया द गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, तो हो क्या रहा होगा? डेटा ही हो रहा होगा, कम्युनिकेट हो रहा होगा। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये इसका सिलेबस है और कंप्यूटर नेटवर्क का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीजें। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ data between two devices or via some form of the transmission medium such as the wire or wireless. For data communication to occur, the communicating devices must be part of a communication system made up of a combination of the hardware and software. Effectiveness of the data communication system depends on the four fundamental characteristics. और डेटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या डेटा को एक्सचेंज करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, वो जाएगा किसके थ्रू? वो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया अभी हम देख कर आ रहे हैं क्या होती है। उसके उसकी इफेक्टिवनेस हम मेजर करें तो किस तरीके से करेंगे? उसमें 4 पैरामीटर्स फंडामेंटल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। पहली होती है डिलीवरी, मतलब कहाँ से कहाँ भेजना है। एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट डेटा जा रहा है। टाइमलाइनर्स मतलब टाइमिंग के साथ। जिटर, जिटर एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी बताएंगे जिटर का क्या मतलब होता है। 3 का मतलब डिलीवरी, उसे पहुंचाना। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है। टाइमलाइनर्स मतलब टाइमिंग के हिसाब से। अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग भी देखें तो एक बातचीत या वार्तालाप। दो लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अगर बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो जरूरी है कि कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोगों का होना जरूरी है और दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि दोनों के जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए। तो सेम का मतलब दोनों को वो चीजें आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज। अगर कोई इंग्लिश वाला है, कोई जापानीज लैंग्वेज वाला है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तो लैंग्वेज ज़रूरी है और कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। ऐसे ही हम उसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसमें कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो हमें 2 लोगों का होना ज़रूरी है। जो बोल रहा होता है, वो सेंडर होता है, जो सुन रहा होता है, वो रिसीवर होता है और जो जिस मीडियम से मैसेज आ रहा होता है, वो ट्रांसमिशन मीडियम होता है। रूल्स बने होते हैं, सेट ऑफ रूल्स मतलब प्रोटोकॉल्स। इसमें लैंग्वेज भी आएगी, सिमेंटिक भी आएगा और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए? कौन-कौन? सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, नियम कानून, डेटा रिप्रेजेंटेशंस। अभी हम डेटा एक्सचेंज की बार-बार बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो डेटा कौन-कौन सा हो सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? टेक्स्ट हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो, नंबर्स हो सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है या वीडियो हो सकता है। इसके अलावा तो कोई डेटा होता नहीं है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है। इनका एक्सचेंज करना, ऐसे भेजना एक सेंडर से रिसीवर के पास या पूरा। अब इसका डेटा फ्लो की बात करते हैं। अभी हम डेटा कम्युनिकेशंस की जो बात कर रहे थे, उसमें क्या था कि सेंडर्स बोल रहा है, रिसीवर सुन रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मोबाइल फ़ोन पे तो दोनों ही बोल रहे होते हैं, मतलब दोनों ही सेंडर होते हैं, दोनों ही रिसीवर होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। तो ये पता कैसे चले डेटा फ्लो क्या है उसका, किस तरीके से मोड क्या हो सकता है? ड अगर जैसे एक हम टीवी का एग्ज़ाम्पल लें, टीवी में क्या होता है कि जैसे कहीं से ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, ब्रॉडकास्ट करने के बाद सारी टीवी चल रही होती हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती हैं। इस तरीके का जो मोड होता है या डेटा फ्लो होता है, वो सिम्प्लेक्स टाइप होता है, उसका नाम होता है सिम्प्लेक्स डेटा फ्लो या सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। या अभी अपनी क्लास के लिए भी बोल सकते हैं, ये भी एक सिम्प्लेक्स टाइप का है। जैसे भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन मोड सिम्प्लेक्स ही बोल सकते हैं। क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो उसमें डेटा फ्लो मतलब एक सेंडर है जो कि मैसेज सभी के पास भेज रहा है और रिसीवर्स जितने भी रिसीवर हैं वो उसे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वह डोंट रिस्पॉन्ड। दूसरी जो कैटेगरी है ट्रांसमिशन मोड की, वो है हाफ डुप्लेक्स। उसमें क्या हो रहा होता है कि सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, दोनों ही सेंडर हो सकते हैं, दोनों ही रिसीवर, मतलब दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही सुन सकते हैं, दोनों ही डेटा भेज सकते हैं, दोनों ही डेटा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक ही करेगा। सिम्प्लेक्स का अगर एग्जांपल देखें तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग वाला एग्जांपल हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स का अगर एग्जांपल देखें, मतलब एक ही समय पे एक बोलेगा, बाकी का सब सुनेंगे। जैसे वॉकी-टॉकी होता है। वॉकी-टॉकी में क्या होता है, जो एक बोल रहा होता है, बाकी सुन रहे होते हैं। फिर बोलेगा ओवर, ओवर, फिर उसके बाद वो दूसरा मैसेज भेजेगा, मतलब बोलेगा। तीसरी जो कैटेगरी है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों ही सेंडर हैं, दोनों ही रिसीवर हैं और दोनों ही एक बार में बोल सकते हैं और दोनों ही सुन सकते हैं। फुल डुप्लेक्स है। तो इसका एग्जांपल मतलब मोबाइल फ़ोन। लेकिन एक सवाल ये आता है कि फुल डुप्लेक्स पूरी तरह से, मतलब फुल डुप्लेक्स मतलब मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, तो आज भी वॉकी-टॉकी क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? तो वो इसलिए यूज़ करे जा रहे हैं कि वॉकी-टॉकी उस जगह पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ कम है। क्योंकि एक बार में एक ही मैसेज भेजना है। अगर दोनों मैसेज दोनों आपस में बोल रहे होंगे, सुन रहे होंगे, दोनों ही रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, तो उसमें सिग्नल रेट ज़्यादा होगा, ब्रॉडबैंड होगा वो। तो वहाँ पे तो 1-2 सिग्नल ही पहुँच पा रहे हैं, इतने सारे सिग्नल्स कैसे पहुँच पाएँगे? तो उस जगह के लिए पहाड़ों की बात करें या ऐसी जगह की बात करें जहाँ सिग्नल्स कम है, तो वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ द कनेक्शंस, ये हमने पहले भी देखे थे, एक बार और देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शंस, मतलब वन टू वन कम्युनिकेशंस या वन टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशंस। टोपोलॉजीज पहले ही पढ़ ली है हमने।
नेटवर्क देख ही लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क भी देख लिया है और प्रोटोकॉल्स भी देख लिया है। तो अभी आज जो पढ़ा ये सारा अनगाइडेड मीडिया हमने देख लिया। उसके साथ-साथ हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जानी, उसके यूनिट्स भी देख ली, पूरा उसे पढ़ा। बिट रेट क्या होती हैं, बॉड रेट इसके बारे में भी पढ़ा, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डेटा प्रेजेंटेशंस, डेटा फ्लो और टाइप ऑफ कनेक्शंस। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी एक नई टॉपिक के साथ में मिलेंगे वहाँ पे। जो टॉपिक होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू। थैंक यू।